come from all over the country and also joining the effort of the locals in Tawang and in Arunachal Pradesh. The numbers are huge today. Now it is unprecedented of sorts कि इस तरीके की हाई एल्टीट्यूड मैराथन जो कि तकरीबन 10,000 फीट के ऊपर दौड़ी जा रही है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इज वेरी हाई, उसमें वो चैलेंजेस को पार करते हुए भी इतना ह्यूज पार्टिसिपेशन आपको तवांग मैराथन में, तवांग इंटरनेशनल मैराथन में देखने को मिल रहा है। सर, इसका तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि लोकल्स हैं तवांग के, वो तो हैं ही, इनके अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जिसमें सीएपीएफ भी शामिल है, उनके भी रनर्स ऑल ओवर द कंट्री से आए हैं। So we have representation for all 27 states as also some friendly foreign countries. I'm told, I'm not very sure, I haven't met, I'm told that there were runners who were coming in from Kenya also, and like last year we had people coming in from Tanzania who had in fact taken some of the prizes as well. So my message to all the people who come here and all those who have not been able to make it this year is that this is a celebration of great human spirit. Tawang International Marathon is a celebration of challenges. It is a celebration of human spirit which has got no expiry. No matter what is your age, be it 5 years, 10 years or 76 years, you'll see for yourself. There are so many very, very senior veterans also who are participating to this. My message is, come to Tawang, be part of this celebration and make a history for yourself. Something which is unique and some unparalleled within the country. Thank you. Why this effort to organize this, popularize this marathon? It must be holding immense and special significance. Of course, yes. See, Army has been since a very long time associated with promotion of sports and physical fitness in the country. And it is not only something which is done by the Indian Army, and the other forces also, like the Navy, the Air Force, as also the Central Armed Police Forces. Forces by nature are supposed to be maintaining themselves in a high state of physical fitness. We want to promote this as a virtue, as a national virtue, that everybody needs to strive hard to keep himself physically fit, to be able to take his own job as also the aspect of nation building forward. Now, why Tawang? Tawang is extremely special to the country, to the people of Arunachal Pradesh, to the Indian Army, to us in 4 Corps, the Gajraj Corps. It is an extremely important place for various reasons. You have historical reasons. You have the aspects of strategic significance that is associated with Tawang. The proximity to the borders, our northern borders. As you're aware, the border as the crow flies from this area is just about 15 kilometers. So therefore, this is a very, very strategically important place, and we want to bring in more and more people to be able to come and experience Tawang and the beauty that it holds in this entire landscape of Arunachal Pradesh. So our efforts towards Tawang have not been new. These efforts and the bonding that the Indian Army shares with the people, with the Monpa community of Tawang and with the population of Tawang in general is exceptional. And this is just a manifestation of that, that commitment that the Indian Army has with the people of Tawang that brings us into holding such kind of big events in Tawang. तो इस बार का तो आप सबको मालूम है कि स्ट्राइड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन तवांग, ग्रीन तवांग, यानी कि हम सबको तवांग को साफ सफाई रखना है। और इसके अलावा तवांग के अलावा भी हमारा पूरा देश, हमारा भारत को पूरा प्लास्टिक फ्री रखना है, साफ सफाई रखना है। तो मैं आप सबके माध्यम से मैं अरुणाचल सरकार जो कि हमारा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस इनिशिएटिव के लिए मैं इंडियन आर्मी को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये इनिशिएटिव, ये मैराथन की वजह से हमारा तवांग को काफ़ी वर्ल्ड वाइड हाईलाइट हो रहा है, काफ़ी मतलब लोग जानने लगा है। और इसका टूरिज्म सेक्टर में भी काफ़ी हमारा जो यहाँ का बिजनेस कम्युनिटी है,
होटलर्स है, सबको फायदा हुआ, इससे बहुत फायदा हुआ। नहीं, अब इसका ये थर्ड ये एडिशन है, तो इसमें आप लास्ट टू जो एडिशन है इससे काफी फायदा हुआ, क्योंकि अब जो टूरिज्म इसमें करीबन 6 से 7 हजार लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप मान के चलिए कि अब एक तवांग एक छोटा सा जगह है, यहाँ लिमिटेड होटल्स है, लेकिन करीबन मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स है, करीबन आप मान सकते हैं कि एक महीना पहले आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो यहाँ पे दौड़ने के लिए वो एक महीना पहले आकर यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो स्टे कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होटल में रह रहा है, तो इससे काफी होटल में हमारा बिजनेस कम्युनिटी में काफी फायदा हुआ है। आगे मैं आर्मी से हूँ, इंडियन आर्मी से। तो 25 मराठा मेरा बटालियन है और तवांग मैराथन दौड़ के बहुत अच्छा लगा। मैं टारगेट ही रख के आया था कि पोडियम में रहूंगा, तो बहुत अच्छा लगा। पोडियम में रूट बहुत हार्ड था, लेकिन अच्छा प्लानिंग से रेस लगाया, अच्छा लगा फर्स्ट आकर। यूथ से ही इधर के यूथ ने पार्टिसिपेट करना चाहिए मैराथन में। बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, अभी 3 साल से, अभी तीसरा साल है और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर है, बहुत अच्छा लगा। मैराथन में ज्यादातर इंड्योरेंस की जरूरत ज्यादा है आपको, बाकी तो हम परमानेंटली ट्रेनिंग करते रहते हैं। ऊटी में ट्रेनिंग करते हैं हम, सेमी हाई एल्टी में। मेरा नाम सरस्वती राय और मेरा 42 किलोमीटर में प्राइज मिला है। फर्स्ट पोजीशन भी मिला है। हाँ जी, हाँ जी। तो तवांग मैराथन को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? तो तवांग में जो आज मैंने पार्टिसिपेट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा ये फर्स्ट टाइम है हाई एल्टीट्यूड का। मेरे को पहले डर भी लग रहा था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बहुत इंजॉय किया सर, बहुत अच्छा लगा। कौन से राज्य की रहने वाली हो और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं दार्जिलिंग कालिम्पोंग से हूँ डिस्ट्रिक्ट। और मैं महिला को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं 47 इयर्स के हूँ और जितना भी महिला ये है उसको यही संदेश देना चाहती हूँ, आप भी कर सकते हो। मैडम, चैलेंजेस क्या है अगर बोला जाए तो? चैलेंजेस तो है, लेकिन माइंडसेट होना चाहिए, अपना प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो अच्छा से प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग किया तो हो सकता है। मेरा एज के हिसाब से भी आने वाला जो भी रनर्स लोग हैं वो कर सकता है कहीं भी जाके। आपका नाम क्या है और कैसा लगा मैराथन में पार्टिसिपेट करके? मेरा नाम अमीशा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि सबको ट्राई करना चाहिए और दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, सो आई रियली थैंक तवांग मैराथन ऑर्गेनाइजर्स फॉर दिस। मेरा नाम विद्या है और हमने 5 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। मेरा नाम केसांग टाशी है, मेरा मिसेस सोनम छोरेन। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का पहले से बहुत इच्छा था। वैसे मैं यहाँ का ही हूँ, लेकिन कभी तक किया नहीं था। ये है 3rd एडिशन ऑफ तवांग मैराथन। तो यहाँ पे आके मुझे यही लगा कि इंडिविजुअल स्वस्थ सबसे महत्वपूर्ण लगता है एक आदमी के लाइफ में। और यही बात यहाँ पे आर्मी और जो सिविल के बीच में जो यूनिटी है वो काफ़ी प्रदर्शनीय है। एंड इसके लिए मुझे लगता है कि हर देश के हर कोने में इस तरह आर्मी और सिविलियन के बीच में एक संबंध या रिलेशन होना चाहिए। थैंक यू जी। एक फ्रेंडली मैराथन था और फिर बहुत अच्छा लगा इसे पार्टिसिपेट करके। और ये फिटनेस के लिए हो चाहे यूथ के लिए हो, सबके लिए एक बहुत मतलब मंच, इतना प्लेटफॉर्म है कि जो आगे बढ़ने के लिए सबको जो कॉन्फिडेंस देते हैं। और फिर फिटनेस की तरफ में तो लाइक सुपर डुपर